Hello, young explorer of class 4. You all are again welcome back in your social studies class. So, in this class, we are going to study another new chapter, lesson number 8, Forest and Wildlife of India. Bacho, in previous class, we have discussed so many things about India. Physical features, how's the climate, how's the soil, what about the industries. Now in this chapter, we are going to know more about the forest and wildlife. कि भारत के जंगल कैसे हैं और उनमें रह रहे जंगली जानवर के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे. Write the names of the wild animals that are found in Indian forest. So here you have to write any 4 wild animal names that are found in our forest. Wow fact, cutting the tree is called deforestation. बच्चों जब हम पेड़ को ज्यादा मात्रा में पेड़ की कटाई करते हैं तो उसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो कवर्ड है बच्चों नेचुरल ग्रोन ट्री से एंड प्लांट से. फॉरेस्ट इज फुल ऑफ many small and big wild animals. बच्चों द काइंड ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन द फॉरेस्ट ये डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को और उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के सॉइल को. Here we have some importance of forest. Forests are useful to us in following ways. We get many things from forests such as timber, firewood, pulp, black, resins, gum, herbs, grasses and leaves. And one of the most important product जो forest का है that is timber and it is used for building houses, tools, furniture and railway sleepers. Paper जो है it is made up of wood pulp, roots of tree hold in their places. ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती हैं बच्चों. फॉरेस्ट क्या कंट्रोल करते हैं? फॉरेस्ट कंट्रोल करते हैं फ्लड को एंड सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करते हैं. फॉरेस्ट हमें ताजी हवा प्रोवाइड करते हैं और एटमॉस्फेयर को ठंडा रखते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट हेल्प करते हैं टू कॉज द रेनफॉल. इंडिया के पास बच्चों रिच फ्लोरा है और फौना भी है. यानी कि India is rich in wild vegetations and animals too. Now here we have basically 5 kind of forest. And what are they? Evergreen forest, Sadabahar forest, deciduous forest, thorny forest, coniferous forest and tidal forest. Let us discuss one by one. Number 1 is your evergreen forest. So evergreen forest जो है it remains throughout the year green. ये साल भर हरा भरा रहता है. Trees of this forest they are tall and do not shed leaves at the same time. ठीक है, इनके जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं और एक समय पे ये उनकी जो लीव्स हैं वो पत्तियां जो है वो शेड नहीं करती हैं. द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ये जो है ना इनके पास ब्रॉड कैनोपी होती है एट द टॉप एंड द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी हार्ड. एबोनी, महोगनी, रोजवुड ये कुछ एग्जांपल्स हैं एवरग्रीन ट्रीज के. द एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट इज फाउंड इन द वार्म एरियाज विद द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं बच्चों? ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप पे मिलते हैं एंड नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा. So they are rich in evergreen forest. Deciduous forest क्या होते हैं बच्चों? ये मॉनसून से रिलेटेड फॉरेस्ट होते हैं. Most of the trees in this forest shed their leaves in dry seasons for about 6 to 8 weeks. And a major part of a country under deciduous forest they provide teak, sal, shisham, sandalwood, samuel, bamboo, etc. And the different types of trees are grown here. यहाँ के जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है एंड द डेसिडियस फॉरेस्ट दे आर फाउंड अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालयन mountain, northeast state and the wetter areas of southern plateau. Then we have the thorny forest. So the trees of thorny forest they have long roots, thick bark, sharp thorns and small leaves. These trees they can live without water for a long time.
ठीक है, ये बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकती है। थॉर्नी फॉरेस्ट बच्चों ये राजस्थान के पार्ट में मिलते हैं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं आपको थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। कॉमन ट्रीज इसमें होती है, कटीले फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, इसमें बबूल का पेड़ होता है, पाम, कैक्टस एंड कीकर के पेड़ होते हैं। और बहुत सारी जगह, बहुत सारे बच्चों आपको झाड़ झंकाड़ भी दिखाई देता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बच्चों ये कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है हिमालयन माउंटेन्स में और द पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। Conifer forest trees are tall and pointed and have needle-shaped leaves. And these trees bear cones. The main trees in these forests are chill, deodar, fir and cypress. The pulp of these trees is used for making paper, and these trees also yield resin and turpentine oil. Then we have the tidal forest. Tidal forest को बच्चों मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, and this can be grow in fresh and saline water. मैंग्रोव फॉरेस्ट ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये ज्यादातर डेल्टास में पाए जाते हैं ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिवर्स। एंड द फॉरेस्ट आर डेंस एंड वुड इन हार्ड। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घने होते हैं और उनकी लकड़ियां बहुत हार्ड होती हैं। सुंदरी ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस ट्री है जो पाई जाती है सुंदरबन में। एंड देन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ये भी बच्चों क्या है? टाइडल फॉरेस्ट है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट 1974 में द विलेजर्स इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड थॉट ऑफ यूनिक वे टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए बच्चों ईयर 1974 में जो विलेजर्स थे उत्तराखंड में, उन्होंने एक यूनिक वे सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी आर्म्स फैला के पेड़ों को ऐसे पकड़ लिया मानो कि पेड़ों को ऐसे गले लगा लिया। They put their arms around the trees, and when the tree cutters came to cut them, they would not leave the trees till they left. इसे हम कहते हैं बच्चों चिपको मूवमेंट, hugging the tree to save from being cut. The leaders of this movement कौन थे बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी। इनका मानना ये था कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मेनी प्रोग्राम्स। तो भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लॉन्च किए हैं बच्चों फॉर फॉरेस्ट मूवमेंट, जैसे कि वन महोत्सव है। चिल्ड्रंस और स्कूल में, चिल्ड्रंस जो स्कूल में जाते हैं उनको भी इनकरेज किया जाता है, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई जाती है और उनको बोला जाता है कि दे शुड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ। द टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड करता है बच्चों जंगली जीवन, इंक्लूड करता है वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, इंसेक्ट्स को, एक्सेट्रा को, जो फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं। पास्ट में वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स इनको हंट किया जाता था बच्चों। दिस लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम एनिमल्स। इनका शिकार होने के कारण बहुत से सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो आज हमारे बीच नहीं है, ये गायब, ये विलुप्त हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो खतरे में हैं। हंटिंग जो है बच्चों, शिकार करना अब बैन हो गया है। हमारी जो सरकार है उसने डेवलप किया है लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व टू सेव वाइल्ड लाइफ। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल्स अब बिल्कुल भी बच्चों परमिटेड नहीं है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क यहाँ आपको मेंशन किए गए हैं। नंबर वी हैव कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी ओडिशा। Here we have two wow fact. केबुल लैमजाओ ये क्या है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में। और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। We can find wildlife sanctuaries, national park in the map, and there are wildlife sanctuaries and national parks in many parts of India. Gir Forest of Gujarat is home of Asiatic lions. Tigers, they are protected in national park जैसे कि Ranthambore and Corbett. We have Kaziranga Park and Manas Sanctuary in the northeast of India, and they are famous for elephant, rhinos, tigers and deer. And the Sundarban in the West Bengal is the home of
famous Bengal tiger, and which is our national animal too. Here we have herd of animals. यहाँ आप हाथियों का झुंड देख सकते हैं बच्चों. टिम्बर लकड़ी होती है. डेल्टा एक वेटलैंड एरिया होता है बच्चों. लॉन्च किसी चीज की शुरुआत करना. एक्सटेंशन मतलब विलुप्त गायब हो जाना. That's all about this class. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, revise your chapter properly and also do on reading more and more. Take care. Bye bye.